एक्चुअली डज नॉट हैव अ मीनिंग. खुद पे कॉन्फिडेंस रखो. So popular and it आप जब तक आपको प्रूव ही नहीं करोगे, लोग आपको कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं. बट टू ऑडिशन फॉर मिस ग्रैंड इंडिया and Miss Universe India. One of the auditions is on 16th of Feb. So very close. And then you don't have anything to show, but you still have your performance left. Training is important, no matter how good you are. And you have that confidence to portray yourself with your flaws. मैं ये स्टेज पे नेशनल्स के लिए नहीं आई हूँ. मैं ये स्टेज पे मेरे कंट्री को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने आई हूँ. मिस सुष्मिता सेन एंड मिस हनास. मैं जब भी बाइक पे रहती हूँ ना, मुझे मेरे बाइक से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे ऑपोजिट जो लड़कियाँ स्कूटर या कार में रहती है ना, मुझे उनसे डर लगता है. आई गेस इंडिया इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेड गर्ल्स ऑन बाइक्स, but then it gives me like a very funny story to tell to my community. I say you apply sunscreen every 3 hours, even if before going to sleep. We say don't run behind money, don't run behind work. Just prove yourself, and work will come to you. Thank you so much. You're an amazing team. Hello viewers, welcome to Wrapped Pulse podcast. I am your host Mubin, and on our today's show our guest is very special. She is the winner of Milestone Miss India and Milestone Miss Global International. She is a stunning, gorgeous woman. Welcome on our show, Shimonal Wankadia. Thank you so much for inviting. It's a pleasure to be here. Same here. Thank you so much for coming on the show. Shimonal, your name is extremely difficult to pronounce, like Shimonal Wankadia. So my first question to you would be कि क्यों मतलब इतना डिफिकल्ट नाम है, तो इसके पीछे इसका मतलब क्या है या कुछ बताना चाहेंगे? So usually names have a lot of meaning. My name really does not hold any meaning, and it's a very funny story. Every time I keep asking my mom why she named me Shimonal and what's the meaning of it. So every now and then the meaning changes. तो नाम का वो मतलब बदलती रहती है. कभी कभी पर्ल इन द ओशन. उनको खुद को नहीं पता. तो उनको क्या पता है, जब भी मैं बॉर्न हुई थी ना, तभी हमारे कोई नेबर थे हु शी रियली ट्रस्टेड. सो माई सिस्टर्स नेम केम फ्रॉम अ बुक. वो हमारा भगवान का जो बुक रहता है ना, मेरी बहन का नाम उसमें से आ गया. बट मेरे नाम के टाइम पे वो नेबर ने ऐसे लिस्ट पे नाम लिखा था. और माई मोम वॉज वेरी लेजी. उन्होंने बहुत लेजी थी. तो उन्होंने जो पहला नाम देखा वो शिमोनल था. मतलब अच्छा ओके, ये मेरे बच्चे का नाम. तो वो इतनी लेजी थी कि जो उनको पहला नाम दिख गया, वो अच्छा ओके इसका नाम शिमोनल रख देंगे. ओके, पर इसका मीनिंग क्या है? It actually does not have a meaning. And you said it keeps changing? Like they to put me off, like to shut me up. She tells me हाँ इसका नाम ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कुछ नहीं है. लेकिन It's just a random book में जो first नाम लिखा वो दे. या जो बुक में पहला नाम दिख गया वो रख दिया. Amazing story behind your name. Serious. So Shimonal, you have won this contest. You know, Milestone Miss India, also Milestone Miss Global International. So I would like you to tell our viewers, what is the procedure to go to such pageants? Like, how do you enter? So pageanting, people think it's a very difficult thing, which उनको लगता है बहुत difficult है. आपको एक standard of beauty maintain करना रहता है. आपको कभी कभी ऐसे दिखना रहता है, वैसे दिखना रहता है, ये surgery करना पड़ता है, वो is what people think. हम लोग मतलब ऐसा अभी हो गया है because of the movies, because of what social media influence के वजह से लोगों को लगता है कि you have to be a certain way. But it's not really that. वो इतना एक्चुअली ट्रू नहीं है. अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप वो स्टेज पे खड़े हो सकते हो, अगर आपको पता है कि जब आप बोलोगे और लोग आपको सुनेंगे, देन यू आर फिट फॉर दैट स्टेज. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन वी स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ पैजेंटिंग, द फर्स्ट थिंग आवर मेंटर टेल्स अस इज खुद पे कॉन्फिडेंस रखो. क्योंकि आपको आपसे भी कोई ज़्यादा सुंदर दिख जाएगा उस टाइम पे. आपके पैजेंटिंग के जर्नी पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करने रहते हैं. बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कोप एंड आप कैसे उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हो. क्या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है? सो मेन की इज़ टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू आर एबल टू पुट योर सेल्फ फॉरवर्ड इन एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज. ओके,
तो देयर इज नो सच लाइक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स? Oh no no. I remember. So I go through. I have a condition called as vitiligo. It's just a skin condition where my hand ka color is different because of less melanin from my entire body. So it's more whiter than my entire body. तो पीपल अभी को लगता है कि आपके अभी मेरे पास 2 टैटूज़ भी हैं, तो उनको लगता है कि यू कांट बी ऑन दैट स्टेज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू हैव बोटॉक्स डन और समथिंग, you they tell you a lot of things that you might feel, but it's not that. I know one of the winners of Miss Femina India, her name is Miss Priyadarshini. ओके. She had a burnt body, like she was a survivor of a accident and she had a lot of burn scars उनके पूरे बॉडी में थे इंक्लूडिंग हर फेस, बट शी वॉज द विनर. वो मिस फेमिना इंडिया की विनर रह चुकी है. तो इट इज़ व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू पोर्ट्रे योरसेल्फ विथ योर फ्लॉज, आप अपने फ्लॉज को भी कैसे आगे लेके जा रहे हो वो भी एक मायने रखता है इन पैजेंट्री. अगर आपको लगता है आपके फ्लॉज आपको अभी पुश डाउन करने वाले हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. बट अगर देयर इज़ अ लूप होल टू एवरीथिंग. So if you find that way of making that flaw your confidence, या. then it becomes a +1 to you on the stage, and people will just love you because you are confident of yourself. आप खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रख रहे हो इसलिए दूसरे लोगों को बिलीव करवा सकते हो. That I feel is more important. ओके. तो आप ये कहना चाह रहे हो कि लाइक जस्ट ओन योर फ्लॉज, जो Correct. आपकी कमियां हैं उसको भी अगर आप ओन करके ग्रेसफुली Correct. प्रेजेंट Yes, कर yes. सकते हो तो आप पेजेंट भी जीत सकते हो ऐसे. एंड आप जाओगे ना पैजेंटिंग में तो वो लोग आपकी कमियां निकाल ढूंढेंगे बिकॉज दे वांट टू फाइंड द परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू इंटरनेशनल जा सकता है. Yeah. बट अगर आप उनको दिखाओ कि इवन विथ दिस फ्लॉ आई कैन बी द विनर, ओके. हाँ, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. या यू हैव टू प्रूव इन एनी कंडीशन. इट्स अ लाइफ रूल. आप जब तक आपको प्रूव ही नहीं करोगे लोग आपको कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं. तो इवन इन द पैजेंट इंडस्ट्री, टू बी वेयर यू वांट टू बी यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. यस. क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एज वेल. लाइक कितना मतलब कितने लड़कियों से आप compete करते हो एक पैजेंट में? So usually because we have like a lot of states, बहुत states है, आपको मैक्स टू मैक्स तो आपको टॉप 40 टॉप 20 जब आप नेशनल राउंड खेलते हो तब या इधर आप टॉप 40 में होंगे या टॉप 20 में होंगे. मिस लीवा डीवा हैज़ टॉप 20, बट इफ़ यू गो मिस यूनिवर्स देखो, मिस ग्रैंड देखो, मिस फेमिना देखो, तो उनमें क्या हो जाता है आप 40 लड़कियाँ हो फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट्स. And So- all are beautiful. एंड everyone is beautiful. Some are very short but they still become winners. कोई बहुत शॉर्ट रहता है. अभी हाइट का भी एक क्राइटेरिया है कि आपको दिया. इतना टॉल होना चाहिए, अब भी हटा दिया है. बट पीपल स्टिल थिंक ना कि जो लंबा है वही जीतेगा. बट ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप किधर से भी आओ, आप कैसे भी दिखो, अगर यू कैन कैरी योर सेल्फ वेल देन यू आर सेट फॉर द स्टेज. ओके. सो इट मस्ट हैव टॉट यू अ लॉट ना. पेजेंटिंग में कितना कुछ सीखने मिलता होगा आपको. A lot actually. I have learned quite the good lessons as well from it. I have had my downfalls. Many times I have heard, oh you have a scar, आपके हाथ में ये है, आपके पास टैटू है, आप नहीं कर सकोगे, हम आपको सिलेक्ट मॉडलिंग में मोस्टली ऐसा होता है. तो many times I have been rejected and from being a representative on the stage, and वो मुझे सिखाया है कि that I need to work on myself but making myself stronger. मैं अपने आप को वो वे में stronger बना देती हूँ फिर. एंड आई लाइक अ गुड चैलेंज. अगर कोई मुझे चैलेंज करता है ना कि आप ये नहीं कर सकते तो मैं उनको और हाँ करते। करने का मन होता है मुझे. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड कि यू हैव लाइक अ बर्थ मार्क ऑन योर हैंड एज इट्स नॉट अ बर्थ मार्क बट आई हैड इट एवर सिंस आई वाज स्मॉल. मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मेरे हाथ में है. तो इट्स नोन एज विटिलिगो. इट्स जस्ट अ माइनर स्किन कंडीशन दैट हैपेंस. तो कभी कभी क्या हो जाता है ये पूरा हाथ में स्प्रेड हो जाता है. आप अचानक से ऐसे गोरे दिखने लग जाते हो. अच्छा. दैट इज नाइस, राइट? That's a plus point. That's a plus point. Or else it stays with you like the way it is in my hand. But other than that, it really doesn't interfere. कुछ इसका interference है नहीं मेरे life में. It has always, my mom has always been supportive. My mom has always made me, उन्होंने मुझे बोला आपको कौन सा भी, I can wear any kind of clothes. अच्छा.
if backless हो sleeveless. मैंने तो normal before even I represented myself onto the stage, I faced a lot of people. वो मुझे आके बोलते थे बेटा ये आपका डिजीज़ है, ये आप कवर करके चलो. मैं बोला आंटी ये डिजीज़ नहीं है, ये नॉर्मल स्किन कंडीशन है. सो आई हैव फेस्ड इट. मैंने बहुत जगह पे फेस किया जिधर लोग मुझे आके बोलते हैं अरे अरे आपका हाथ जल गया है, अरे अरे आपको ये हाथ पे हुआ है, आप ये कवर करो, आप ऐसे कपड़े मत पहनो, ये दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है. एंड आई हैव जेन्युइनली फेस्ड इट. एंड एक टाइम था मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि आई डिड नॉट चूज टू बी बॉर्न with it. I was born with it, so why should I bicker on those small things? Yeah. लोगों का काम है कहना, like everybody says, but अगर मैं उनका ही सुनती रहूँगी then मैं किधर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाऊँगी. I will not be there where I want to be if I keep listening to other people. So I shut my ears. I listened to my mom while she always encouraged me to put my, without her I wouldn't even be the winner of Miss Global International. She put confidence in. She was the one who put confidence in me. She's like, no, तू जा, तू जीत के आ, you will be the winner and we know that. अच्छा. So she pushed me throughout the competition period also, and that is why I am like, I shut my ears to the world and I only listen to my mom and Bhagwan ji and myself. That is amazing. Yeah. Yeah. And I've seen this also when जब आप अपने flaws को own कर लेते हो तो it starts looking more beautiful, right? Yeah. एक ग्रेसफुल एक, हाँ, आप में आ जाता है, एक ग्रेस acceptance आ जाता है, एक हाँ. एक्सेप्टेंस आ जाता है, एक ग्रेसफुलनेस आ जाता है, एक पॉइज आ जाता है जब आप आपके खुद के फ्लॉज को ही पावरफुल बना देते हो. एंड आपकी मॉम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज अ मेंटोर और यू नो. शी इज़ मेरे घर पे शी इज़ लाइक माई सरस्वती देवी. शी इज़ एवरीथिंग. इफ शी सेज यू विल बी एबल टू डू इट, अच्छा. you will be able to do it. If she says you will not be able to, then you will not be able to do it. बोल दिया बस बोल दिया. बस बोल दिया वैसा. तो she has been supportive throughout, even when I was young. I had a lot of learning disabilities when I was young, so studying was like a major problem for me. I was not the best student. ADHD था Yeah, आपको? I had, but she pushed me through a lot of remedial classes, a lot of, she was there throughout my period of remediation practices and other classes. She used to be the one to take me. वो मुझे लेके जाती थी. So I've seen her, and she's always supported me and my sister for whatever we wanted to do. And she's done an amazing job. आप मतलब इस मुकाम पे हो तो obviously you know आपकी mom बिकॉज का बहुत- जब उनका एक पता है ना, कभी कभी पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. बट माई मॉम ऑल्सो उनके लाइफ में शी मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. उनको जो करना था नहीं कर पाए. वो कर नहीं पाई बिकॉज शी हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट पास्ट. हर पास्ट वॉज आई माई मासी टोल्ड मी दैट उनका पास्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट था. एंड उनको घर छोड़ना पड़ा था, वो घर छोड़ के चली गई थी, बहुत कुछ हुआ था उनके साथ. सो नाउ वो अपना लाइफ जी रही है. नाउ शी इज़ स्टार्टिंग टू लिव हर लाइफ. शी इज़ पुटिंग हर सेल्फ. तो शी डजंट वांट अस टू स्ट्रगल थ्रू व्हाट शी वेंट थ्रू. उनको चाहिए कि उनके बच्चे वो सब शान शौकत से जी सकते हैं जो उनको वो टाइम पे कभी मिला नहीं था. सो वो भी एक स्ट्रगल से आज हम लोग जिधर है, व्हाट आई वुड से द passion I can go through, the money I can spend, the house I'm living in is all because she made sure that my kids don't have to live that way that I lived. Okay. And she did it alone, right? She did it all alone. So she went through 2 divorces in her marital life, and it sort of impacted her. Her first marriage only was a very horrible one, like my actual dad, and it impacted her into her life a lot. उनको मेरे पापा जो थे वो काम नहीं करते थे. ही वॉज इन टू स्पोर्ट्स. वो ही वॉज जस्ट अ क्रिकेट कोच, एंड अदर देन दैट ही यूज टू नॉट वर्क. सो माई मॉम यूज टू बी द वन यूज टू वर्क एट होम, वर्क इन द वर्क आउटसाइड, was the bread maker of the family. And then one day she decided, no, maybe it's time I need to step out and I need to create an image of who I am. And that's how she struggled all her way, and for 13-14 years now she has a successful career in Bandra. Yeah, your salon, the Sam Salon in Bandra is so popular, and it is like अभी तो 2 branches हो गई हैं जो बहुत ही popular है. So and she's done it all from scratch, खुद अकेले. Everything from scratch. So उन्होंने बहुत पहले किधर से सीखा था, जस्ट माइनर बोलते हैं ना, इंटर्नशिप किया था.
and I guess that place was known as Champagne. Okay. So she worked there as a manager. While working over there as a manager, she learned a lot of things of being a salon, how to handle a salon, कैसे handle करते हैं, उसमें क्या क्या necessity रहता है. And then after working over there थोड़ा 2-3 साल काम करके फिर उन्होंने उनका खुद का खोला. Okay. So we started with Adonis. Our first salon's name was Adonis. Okay. And from there, we slowly became a franchisee of Sam Salon. Okay. Which is extremely popular, na? Bandra Yeah, mein it's bahut. you go in Bandra and you ask anyone about Sam's, they just know it, and they All the even will tell celebrities you, know. yeah, she's the owner. Here's the number. Yeah. Shimonil, one thing I want to ask you. You've come from kind of like a broken family, jaise, your mom and dad have separated. So, did that affect you as a child, growing up? If I have to be very honest, ये सब बहुत impactful पड़ता ही है. कोई भी आप बच्चों को पूछोगे, like anyone who has gone through this problem, मेरे तो टाइम पे मैं 10th standard में थी, तभी भी हुआ था. Like, since she had 2 divorces in her previous time, the second divorce is when I was on my final year board exams. So these all things become really impactful for you, and किधर आपको थोड़ा mentally problems देने लग जाता है. बट माई मॉम शी रियली मेड श्योर कि उन्होंने ऐसे पूरा ध्यान रखा है कि हमारे कुछ भी लाइफ में वी डोंट फेस एनी थिंग बिकॉज ऑफ हर. So even during the divorce time, she would make sure that we are spending time with our father as well. And even that she fulfilled her role of a father as well as a mother. Oh, both. Both the roles she's successfully taken, and now it's our time to sort of repay to her. Yeah, definitely. And you are. I mean, you're the winner and you've actually made a name for yourself. So I'm sure your mom is so proud of you. I'm sure she's very happy and she wants me to go more ahead. उनको चाहिए कि मैं और भी कुछ आगे Of course. करूँ. Talking about that, I want to know अभी आपके future plans. We have heard कि आप अभी कोई beauty pageant में next जाने वाले हो, तो कुछ share करना चाहेंगे? My 1 year is over with my previous pageant, so now I'm all again, at the A game to participate for other pageants. So currently I'm looking forward to audition for Miss Grand India Okay. and Miss Universe India. Oh wow. One of the auditions is on 16th of Feb. So Very close. the reason this podcast, I was sort of not being able to message you and it was getting delayed is because I was so into the preparations of it. It's only 2 weeks and 2 weeks are so less. You have to prepare your dress, your hair, and my training is still going on. I started my training 6 months prior, so it's still going on. So it takes a lot of energy, a lot of time just to audition for 25 minutes on the stage. Oh my God, just for the audition. Just for the training auditions. is for, you said, 6 months. I started 6 months prior. I started last October. Acha. But normally you have to start. No. Actually, all these competitions which you see at a higher level, you have to start your training 6 months before. क्योंकि हमें लगता है इट्स जस्ट जाना है स्टेज पे ऐसे लेफ्ट लेके सीधे से चलना है, थोड़ा स्माइल देना, बट ऐसा नहीं होता है. कभी कभी आप स्टेज पे होंगे, आपको पता है आपको चलना है, बट आपको कैसे पॉइज में चलना है, कैसे ग्रेस के साथ चलना है. कभी कभी हमें स्टेज में ऐसे वियर्ड सा स्माइल दे देते हैं एंड यू माइट ऑकवर्ड आउट द जजेस. तो ये सब बोलने का ट्रेनिंग, हाउ टू स्पीक ऑन द माइक, हाउ टू स्टैंड, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू लर्न. अच्छा. You have to get trained. आप बहुत लकी होंगे या आप बहुत born with skill होंगे, तो you might not need any training. But I feel a good mentor training is always the best. Okay. So catwalk भी आपको सीखना पड़ता है पूरा? It's not so easy. No, it's not easy. आपको सीखना ही पड़ेगा. आपको लगता है आप बेस्ट कैटवॉक कर सकते हो, फिर आपकी मेंटोर बोलेगी नहीं फिर से चलो. अच्छा. तो बहुत प्रैक्टिस होता है. बहुत ही प्रैक्टिस होता है. हमारा जो ट्रेनिंग चलता है, इट्स इन अंधेरी ओनली टुवर्ड्स ईस्ट साइड. इट्स नोन एज कोकोबेरी. Okay. The mentors are Alicia Raut and Miss Alicia Raut and Miss Anjali Raut. Okay. They are from this industry. Miss Anjali Raut is was a winner as well, and Miss Alicia Raut वो एक बोलते हैं ना, उन्होंने फैशन मूवी में भी उनका एक है सीक्वेंस. देन शी इज़ डन फॉर वेरियस शोज, शी इज़ डन आउटसाइड इंटरनेशनली, शी इज़ अ सुपर मॉडल बेसिकली. Okay.
तो आई एम डूइंग विद देम एंड ट्रेनिंग विद देम करंटली अंडर देम एंड हमारा ट्रेनिंग सुबह 8 बजे चालू होता है, शाम को 6 बजे ख़त्म होता है. और आपको चलना सिखाते हैं? चलना, बोलना, कैसे खड़ा रहना है, कैसे कैसे ड्रेसअप pose होना करना है, आपका हेयर, आपका मेकअप, अच्छा. एवरीथिंग. गुड, सो इट्स नॉट दैट इजी ना? नो, इट्स कम्प्लीटली नॉट दैट इजी. आप प्रोफेशनली ट्रेनिंग करने जाओगे ना तो दे विल ऑल्सो टेल यू कि आपका ओके इधर मिस्टेक हो रहा है, उधर मिस्टेक हो रहा है, तो देर इज आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जगह मिल जाता है. ट्रेनिंग नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा वेर यू हैव टू इम्प्रूव. या. तो आई फील ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट नो मैटर हाउ गुड यू आर. अच्छा, उसमें भी वो लोग मतलब दे कीप करेक्टिंग यू? Yeah, they keep correcting every. So we are around 20 students in one batch, and everyone gets corrected ओके, एंड एवरी डे दिस इज? every day. ओ माय गॉड. एंड योर मेंटर इज लाइक अ सुपर मॉडल जो अभी मेंटर भी बन गई? Yeah, she is. They both are sisters, and they have done fashion industry. They are one of the most known people in this industry, modeling as well as pageantry. So they are the ones I'm doing my mentorship under, and they are best mentors you can ever beat with because they will take out every little mistake. आपका छोटे से छोटे मिस्टेक निकालेंगे. समटाइम्स यू माइट फील कि आपको बुरा लग जाता है कभी कभी जब भी आपकी मिस्टेक निकालते हैं, बट देन यू विल अंडरस्टैंड क्यों निकाल रहे हैं. आप जब भी स्टेज पे जाओगे फाइनल आपका जो रहेगा, ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी आपको बीच बीच में लगेगा, यू विल फील अप एंड डाउन. योर यू फील डेज, सम डेज विल बी आपका अच्छे जाएंगे, सम डेज बुरे जाएंगे. बट जब भी आप ऑडिशंस करोगे, व्हेन यू विल रिप्रेजेंट योर सेल्फ ऑन दैट स्टेज, तभी आपको रियलाइज़ होगा क्यों वो प्रीवियसली आपको बैकलैश मिल रहा था. ओके. एंड देन आपका वो 100% जो निकलता है वो स्टेज पे इज़ ऑल योर हार्ड वर्क जो आपने प्रीवियसली प्रैक्टिसिंग किया है. Oh my god. So it's not a cakewalk. It's not a cakewalk. Yeah. And you have to walk in 6-inch heels, Okay. stilettos, and it's not easy. आपका पैर मुड़ जाएगा, आपका नी टू you can even end up injuring your knee. अच्छा. और स्टेज पे आप दिखा नहीं सकते, तो how will you continue your walk if you are injured and you want to win? Yeah. So you- everything is taught to you. Okay. Just for that, I think 5 मिनट के लिए इतना ट्रेनिंग. हाँ, तो आप सोचो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो you तो एंड have देन यू to. आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, यू नो, आप इंडिया की तरफ से जा रही हो तो यू हैव लिव अप दैट स्टैंडर्ड, राइट? करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सो यू हैव टू. आप जब इंडिया के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुद को नहीं कर रहे हो, आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके रिच हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो अगर आप आपके कंट्री के लिए उतना मेहनत नहीं कर सकते तो फिर वो स्टेज पे जाके भी दिखेगा नहीं. तो आई फील दैट प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट हार्ड वर्क हार्ड वर्क इज़ which you इम्पॉर्टेंट. are doing, right? I'm currently going through that hard work. Yeah. तो ये मिस यूनिवर्स ग्रैंड सपोजिंग शिमोनल जीत जाती है एंड यू फाइनली विन द क्राउन फॉर इंडिया. That is my dream. Like मुंह में घी शक्कर आपके अगर हो गया तो. आई एम श्योर विद ऑल द प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. I am really hoping that मैंने जितना भी प्रैक्टिस किया है वो एक ऑडिशंस के बाद भी I have to continue of course, but at least वो ऑडिशंस राउंड में दिख जाए कि yes मैं ये स्टेज पे नेशनल्स के लिए नहीं आई हूँ, मैं ये स्टेज पे मेरे कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने आई हूँ. तो माई गोल इज़ ऑलवेज दैट. मैं जब भी किधर ऑडिशन के लिए जाती हूँ मेरा एक ही गोल रहता है, मैं वो स्टेज पे जा रही हूँ, इवन फॉर 10 minutes आई एम गोइंग, आई वॉन्ट टू शो द जजेस, मुझे उनको दिखाना है कि मैं नेशनल्स तक नहीं आई हूँ. मैं इधर आई हूँ तो मुझे आगे जाके भी मेरे कंट्री को उधर रिप्रेजेंट करके वो कंपटीशन का क्राउन मेरे सिर पे चाहिए इन द नेम ऑफ अ कंट्री. Oh wow. Your dream, na? That's my dream. My Miss Universe dream started very first when I saw Miss Sushmita Sen on the ramp. And then midway वो थोड़ा रुक गया था because studies आ जाता है and people never took pageantry to be that great. वो पहले इतना importance नहीं था pageantry में. But then recently it got reignited in 2021 after I saw Miss Harnaaz Sandhu. She was Miss Universe winner also. उन्होंने वो Miss Universe का वो crown जीत के भी आई थी. And she had a particular
problem with her, which was a celiac disease she was going through. That means उनका बीच में weight after she won the crown बहुत बढ़ गया था. एंड उनको उसमें भी बहुत बैकलैश मिला था कि एक पैजेंट विनर, शी कैन नॉट गेन वेट, शी कैन नॉट बी फैट, बट शी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग इन स्पाइट ऑफ हर प्रॉब्लम्स, एंड शी represented so gracefully, and she even after winning the crown she showed them कि you know I am meant for what I did. मैंने जो किया उसमें मेरा पूरा 100% हार्ड वर्क है, हक है. तो this is what reignited my passion again कि you know if someone like her who could prove, she's the most beautiful lady if you see her, Miss Harna Sandhu. If you see her picture you will be wowed, you will be stunned by her beauty, her natural beauty also. She's so beautiful. एंड वो छोटा सा यू नो अभी सोशल मीडिया में आप कुछ भी डालो बैकलैश नहीं तो गुड लैश में आ ही जाता है. एंड शी वॉज बैकलैश सो मच, उसमें आप कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया. तो आई थॉट व्हाई कांट आई प्रूव माई सेल्फ. Okay, she was your inspiration. शी इज़ माई इंस्पिरेशन. मिस सुष्मिता सेन एंड मिस हना संधू, they both are my biggest inspiration, and I got the opportunity to meet Miss Susmita. So I was like wowed. That's excellent. But you have been a winner as well for the pageant. I want to know वो moment कैसे होता है जब भी when you're like announced as a winner and then वो crown पहनाते हैं. We see the expression like you know what is the feeling? It's a one time experience. वो जब आपके सिर पे क्राउन रखते हैं और वो चिल्लाते हैं इंडिया, तो वो एक एक्सपीरियंस ही अलग हो जाता है. आपको तो पहले तो लगता है आप कान आपके सुन हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आपका कंट्री का नाम बोला है कि नहीं. And then there will be someone around you who will be like, you won, it's your country. And then you come to a realization, oh, okay, it's me. So for me also it was quite same. I'm holding my, for Miss India when I won, milestone Miss India, मैं मेरे से opponent का हाथ करके खड़ी हूँ. I'm looking at her, I'm telling her, oh, congratulations in winning and winning. And she's telling me congratulations. And अचानक से my name is announced and I'm just looking at her. I'm like, shock. And then she's like, it's your name, it's your name. I'm like, oh, it's my name? And then I'm looking around and then that crown is on my head. And it was a immaculate, one of a kind experience. I still can't believe. Whenever I look at that crown, I'm like, okay, it is home. तो पहले तो आपको अपना नाम सुना ही नहीं देता. नहीं ना, आप इतना स्ट्रेस में रहते हो एंटायर टाइम एंड यू हैव टू पुट योर सेल्फ ओवर देयर. आपको इतना कि आप वो खो जाते हो उसमें, फिर आपको आपका नाम, कंट्री कुछ नहीं सुनाई देता है. और फिर किसी और को बताना पड़ता है इट्स यू हु हैज वन. या बिकॉज वो विनिंग के मैं हमेशा देखती हूँ, दे आर लाइक ऑलवेज हाँ और समथिंग यू नो वेरी एक्सप्रेशंस लाइक ओ माय गॉड इट्स मी. जब आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हो ना, तो एक प्रैक्टिस लिया जाता है पहले. अच्छा कि इफ यू विन व्हाट यू या हाउ यू हैव टू शो द कैमरा सो दैट यू ऐसे करने का प्रैक्टिस करते हैं. आपने बहुत देखा भी होगा, बिहाइंड द सीन्स आता है. तो वो थ्रू आउट अ मंथ वो प्रैक्टिस होता ही है. बट फाइनल राउंड में ना वो सब अच्छा एक्चुअल एक्सप्रेशन, वो फिर एक्चुअल एक्सप्रेशन टेल यू ऐसे करने को, कैमरा को देख के ऐसे करने को. बट वो सब एट द एंड चला जाता है, कुछ और ही निकलता है. आइदर यू आर क्राइंग, आइदर यू आर लाइक सो हैप्पी, और यू जस्ट गो ब्लैंक, लाइक ब्रेकिंग डाउन. या इट्स मतलब बहुत अलग ही एक्सप्रेशंस निकल जाते हैं. कभी कभी कोई ऐसे ही रह जाता है, अच्छा स्टंड हो जाता है. स्टंड हो जाता है. माय गॉड. So every winning experience is always different. Yeah, and I'm sure it's one of मतलब yeah, you can never replace it with any other thing. yeah, I'm sure you will have many more experiences like this. Yes, I want to experience that. I don't just want to be a finalist. I want to have the oh my god while experience. Yeah. Now you just told us that you know walking is not easy. और वॉकिंग में इतनी प्रैक्टिस लगती है, बट वी कम टू नो शिमोनिल कि आप खुद एक बाइक राइडर है. तो आस्क यू हाउ डू हैंडल लाइक यू नो यू आर अ बाइकर योरसेल्फ, और आप बड़ी बड़ी जो यू नो बाइक्स है प्रॉपर प्रोफेशनल बाइकिंग करती हो. तो आई वांट टू नो हाउ यू डू दैट. So biking has always been my passion. बचपन से I don't know how, maybe because of my dad. Okay. But एक मेरा एक था. सो शिमोनिल यू लाइक आप बहुत ही मेच्योर बातें कर रही है. यू नो योर
यू हैव सो मच एक्सपीरियंस अंडर यू एंड जो बातें आप कर रही है वो इतनी मैच्योर है. आई वांट टू नो योर एज. मेरी उम्र अभी जस्ट 23 इयर्स की है. आई जस्ट मतलब मैं अभी जस्ट दिसंबर को 23 इयर्स की हुई हूँ. ओह वाओ. तो इतनी यंग एज में हम देखते हैं कि महिलाएं गाड़ी चलाने से भी डरती हैं और पीछे बैठती है तो भी स्पीड से डरती है. आप बाइकिंग में कैसे नहीं डर सकती हो? मेरा जो बाइकिंग है मेरा एक पैशन है. बचपन से पैशन है. मैं बहुत ऐसे शोज़ देखती थी जो बाइक के रहते थे, मतलब कॉम्पिटिशन्स, बाद में F1 कॉम्पिटिशन्स जो रहते हैं. मुझे कार्स एंड बाइक्स में बहुत शौक है. मैं ऐसे स्पोर्ट्स कार्स, ऐसे सुपर हाइपर कार्स, फिर ऐसे बाइक्स, मेरा बचपन से शौक है. एंड मेरी मम्मी बहुत डरती थी मुझे बाइक दिलाने के पहले भी. शी यूज्ड टू बी लाइक, नहीं नहीं, यू आर अ मॉडल, पैर में लग जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं. एक्सीडेंट्स आर अ पार्ट इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग इन दिस बाइकिंग का. और इवन कार्स, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं अगर आप केयरलेस होते हो. कभी कभी आपकी गलती भी नहीं रहती है, लेकिन बाजू वाला आपको क्रैश करके निकल जाता है. तो माई मॉम वॉज वेरी स्कैर्ड, बट समहाउ वो मेरे अंदर फियर नहीं है. आई डोंट नो, मेरे अंदर वो फियर है ही नहीं. मुझे ऐसे बाइक देख के बस इसको ऐसे इधर से उधर लेके जाने का मन करता है. और वो इतनी लाइक बल्की बाइक है, आप कैसे लाइक? वो आपको लगने में लग रहा है, बट वो बहुत हल्का है. आप चलाने जाओगे तो आपको वेट ही नहीं फील होगा. कौन सी बाइक है आपकी? यामाहा, आई एम जस्ट स्टार्टेड, सो मेरा बाइक इज़ यामाहा R15. इट्स अ वेरी लाइट बाइक. अच्छा, दिखने में तो एकदम बल्कि वैसे दिखने में स्टाइलिश है, पर एक्चुअली है लाइट और बहुत रिलायबल भी है. ओके. बिकॉज लड़कियां योर एज वो सनी और वो छोटी छोटी बाइक्स लेती है. मैं एक बताती हूँ, मैं एज अ गर्ल, मैं जब भी बाइक पे रहती हूँ ना, मुझे मेरे बाइक से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे ऑपोजिट जो लड़कियाँ स्कूटर या कार में रहती है ना, मुझे उनसे डर लगता है. कभी I'm not supporting them, of course, बट एक मुझे दूसरे लोगों से ज़्यादा लगता है कि वो लोग मेरे अंदर घुस जाएंगे. मुझे मेरा उस पर है कि मुझे कभी कॉन्फ्रंट करना हो, इफ़ आई वर टू एवर कॉन्फ्रंट एन एक्सीडेंट. आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन माई स्कूटर्स ऑल्सो व्हेन आई यूज्ड टू लर्न. ओके. बट वो अभी एक आदत सी हो गई है. सो व्हेन आई नो ये एक्सीडेंट होने के पहले हाउ टू प्रिवेंट इट. अच्छा. So I can prevent if something is coming upon me. So that's why I'm maybe overconfident, but तो आपके रिफ्लेक्सेस पे आपको पूरा भरोसा है, लेकिन आपको डर लगती है तो सामने वाले- बाजू वालों के रिफ्लेक्सेस पे पता नहीं अचानक लगेंगे, नहीं लगे, मेरे लग जाएंगे. आपका ब्रेक बराबर लगेगा. दैट इज एक्सीलेंट. तो ये रिफ्लेक्सेस के लिए कुछ करती है आप या जस्ट? I am a taekwondo athlete as well. ओके. So I'm a black belt in taekwondo martial arts. So that's why my reflexes are quite good. I can see something coming even before it actually happens. ओके. बट बाइकिंग में क्या आपको ऐसे लगता है कि मैं अकेली लेडी हूँ और सब बॉयज़ है, या आपको अटेंशन वो आपको एंजॉय होता है? मुझे वो अटेंशन एंजॉय भी होता है. और I have a group. I have two groups. One is Revenge. One is the full form is Rev Your Engines, and the second is SOS, Saints of Speeds. और दोनों ही ग्रुप में, एक ग्रुप में मैं ही अकेली लड़की हूँ और दूसरे ग्रुप में हम 3 लड़कियाँ हैं खाली. There are 40 people and उसमें से 3 लड़कियाँ हैं. सो बाकी के all are boys. बट क्या हो जाता है जब भी आप एक बाइकिंग ग्रुप में रहते हो ना, तो everyone is like your family. Everyone treats you like a family, so you don't feel left out. मे बी किधर किधर वो लोग आपको लड़के हैं इसलिए आपको भी लड़का समझ के बैठ जाएंगे कि आप यू आर ऑल बिटवीन बॉयज़ ना, आप सब लड़कों के बीच में रहते हो, तो आपका भी एक बिहेवियर वैसे हो जाता है. बट कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर अ गर्ल राइडर. दे विल ऑलवेज मेक यू फील होमली. बट जैसे एक बाइकिंग में वो उसमें आप अकेली लड़की हो. हाँ, मेरा जो ग्रुप है उसमें आई एम दी ओनली वन, एंड जो दूसरे ग्रुप में हूँ हम लोग 3 लड़कियाँ हैं. और आप फिट इन हो जाती हो या प्रॉपर. इट्स लाइक बहुत कॉमन थिंग है. आप कोई भी बाइकर को देखो, आप कोई बाइकर को ऐसे प्रॉपर बाइकर्स है जो ऐसे गियर वियर पहन के चलाते हैं, प्रॉपर राइडिंग जैसे स्टाइल रहता है. नॉट अदर बाइकर्स, आई वुड नॉट से जो ऐसे रैश चलाते हैं वो नहीं. वो जो प्रॉपर बाइकर्स होते हैं, आप किधर भी देखो, आप ऐसे रास्ते पे जा रहे होंगे और आप ऐसे कर दोगे तो वो आपको सामने से हाई बैक करते. तो दिस कम्युनिटी इज सो जेलिंग ना, जेलअप हो ही जाओगे. आप किधर से भी आओ, कौन सा भी बाइक लेके आओ, आपके पास चाहे वो छोटा सा पल्सर क्यों ना हो, आप बाइकर हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, आप
रैश राइडिंग नहीं कर रहे हो, यू विल जेल अप विद द कम्युनिटी इज़ ओनली फ्रेंडली, अच्छा, इट्स लाइक फैमिली जैसे इट्स रहता लाइक है। अ फैमिली। यू गो एनीवेयर, आप कोई भी मीट पे भी जाओगे ना बाइकिंग के, नो मैटर आप कौन हो, किधर से आए हो, क्या करते हो, ओवर देयर यू आर अ बाइकर, सो अच्छा। दे ऑल ट्रीट यू वेरी फेयर एंड रिस्पेक्टफुली। ओह! तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ जैसे कि आप वुमन हो तो आपको कुछ सामने से। नहीं, वो तो बहुत होता है, अच्छा। बट बाइकिंग कम्युनिटी में नहीं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस, मेरे लिए वो बहुत फ़नी है। मैं से आ रही हूँ, अभी भी इनफैक्ट आते वक्त मैं बाइक से आई, तो ऑन द वे व्हेन आई एम कमिंग ना, आई राइड फास्ट, नॉट सो फास्ट बट आई राइड फास्ट। माई डोंट टेल माई मॉम, शी विल टेक अवे माई बाइक, सॉरी दिस इज़ ऑन एयर। सॉरी मम्मा, बट आई राइड फास्ट, आई गो 100, आई गो 120, आई गो, सो एनी टाइम मैं गलती से किसी मैन को स्कूटर या बाइक पे से ओवरटेक कर देती हूँ ना, तो अचानक से देखो कि वो लोग ऐसे पीछे स्पीड से आ रहे होंगे आपको ओवरटेक करने, मुझे ओवरटेक करने को, और फिर ऐसे मेरे इतने सामने से चले जाएंगे। ओके। तो आई गेस man's ego is a little bit fragile when it comes to women on bikes, but it is always a funny story for me. ऐसे मैं जाती हूँ किधर, कितनी बार तो मेरा कैमरा सिर पे रहता है, रिकॉर्डिंग करता है, तो वैसे रिएक्शन जैसे कैप्चर करता है ऐसे लोग, ओह माय गॉड! ऐसे आपको देख शॉक। रहे हैं। हाँ, फिर कोई कोई आपको गाड़ी से हॉर्न मार के ऐसे ऐसे करते हैं। सो अच्छा, सम यू एनकरेज भी गेट कर। सपोर्टिव पीपल एंड समटाइम्स यू गेट सो फनी रिएक्शंस ना, ऐसे आपको लोग ऐसे शॉक में देख रहे हैं कि लड़की बाइक पे है। अच्छा, और इतनी पतित मॉडल बाइक पे। उनको पता नहीं रहता ना कि मैं मॉडल हूँ, मतलब अनोमिनस पीपल को पता नहीं रहता, और ऐसे लड़की को बाइक में देख के कुछ अलग से ही हो जाता है वो लोग। आइदर दे विल कम्पीट टू यू, दे ट्राई टू कम्पीट टू यू, और दे विल लाइक दे विल गिव यू दैट रिएक्शन। लाइक अगर एक मैन को ओवरटेक करते हैं तो उनका ईगो हर्ट होता है। हाँ, अगर आप लड़की और आप गलती से मैन को ओवरटेक कर दे तो वो लोग ऐसे, मुझे ओवरटेक किया, नाउ आई विल शो यू। Oh my God. इट्स वेरी हिलेरियस। मैंने बहुत रिकॉर्डिंग्स आते हैं और मैं पोस्ट करती रहती हूँ मेरे स्टोरीज पे। अच्छा, आप डाल देती हो? हाँ, मैं डाल देती हूँ, मुझे कंटेंट मिल रहा है ना। या। अच्छा, ऑल द रिएक्शंस एंड या आई तो पोस्टेड। दैट्स अमेजिंग। सो यू वुड लाइक टू कंटिन्यू योर बाइकिंग? Oh yeah, no matter what. I'm going to even teach my future kids, नहीं तुम बाइक सीखो। Yeah, you better do this. That's amazing. शिमोनल, आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड आप एकदम इसे ना स्ट्रेट बैठे हो, एंड मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैं भी ऐसी सीधी बैठूं। Please don't feel pressure. This is all because of my training. Like my training requires me to sit. And since we are on air, my mentor will see this. अच्छा, and So she will text me, you are not sitting straight, sit straight. So even right now I was trying to sit like this. Yeah. And then suddenly मेरे कान में ऐसे आवाज़ गूंजा, Shimon, sit straight. And I went, okay. या बिकॉज 1 घंटे से आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो। So it's all because of the training. Because अभी of ऐसे आदत नहीं है ऐसे बैठने को, अभी आदत, अभी मैं बैठ भी रही हूँ तो फुल ऐसे फोर्सफुली अपने आप को बिठा रही हूँ ना। अदरवाइज इफ आई एम टॉकिंग टू समवन इट्स लाइक ओके, बिकॉज हर दूसरे पॉडकास्ट में हम आराम से and somewhere I feel if you're representing yourself now, you have to have a demeanor to yourself, you have to have a poise. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किधर जा रहे हो, आप क्राउन आपके सिर पे है, यू आर, दिस इज अ लिटिल सीरियस टॉक, आपके सिर पे क्राउन है, आपके हाथ में टाइटल है, आपके बॉडी में सैश है, और आप फिर आप ऐसे बैठे हो, आपके हैबिट्स बुरे हैं, आपका बोलने का तरीका गलत है. So you carry yourself the way you want people to respect you. So you're supposed to sit straight, you're supposed to have your hands on one side, or you use it to talk, or you're supposed to talk that gracefully. You can't just be as sitting and be like Okay, so you are. yeah, because you are carrying a responsibility with you when you are a pageant winner. And even before, आप विनर नहीं बन सकते अगर आप दिखा नहीं सकते कि मैं लायक हूँ, like I said from the start. So when you show that you are worthy of the crown, you have to act that way also. Somewhere you have to. Private life आपका जो रहता है, या आप उसमें जो भी करो फर्क नहीं पड़ता, because you're not posting it on around the world and social media. But when you're representing yourself as Miss Global International, Miss Universe, Miss Grand, आप किसी को भी देखो, वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो जाता पूरा completely. वो एक रिलैक्स्ड वे में लेकिन एक ग्रेस और एटीट्यूड दिखाते ही है, गुड एटीट्यूड, नॉट बैड एटीट्यूड, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, एक पॉइज, एक ग्रेसफुलनेस उनमें रहता ही है. एंड आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर कैरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी.
डेफिनेटली, क्योंकि योगा ट्रेनिंग में इसमें भी हम सीखते हैं कि हमारा स्पाइन जब स्ट्रेट होता है तो हमारे चक्रास अलाइंड होते हैं करेक्ट. एंड एवरीथिंग लाइक योर एनर्जी इज लाइक Your प्रॉपर. energy is aligned. You know, you will not be nervous. You will have, आपको पता चल जाएगा आपको क्या बात करना है. You will have, people will start looking you in a certain way. कॉन्फिडेंस आएगा या आपके. वो आप कॉन्फिडेंट नहीं भी होंगे ना तो भी आपको लोग ऐसे देखने लगेंगे, आपको लोग सुनने लगेंगे. तो इट ऑल गिव्स यू अ प्लस पॉइंट. अच्छा, जस्ट चेंज इन योर पोस्चर. A change in your posture. Even while standing, a lot of times we stand and we are slouching. Like your shoulders are ahead, your stomach is inside or whatever. तो ये सब दिखाता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है व्हेन यू आर Yeah, लाइक but when you are upright, when you are, then you can show to the world that yes, I am confident enough. फिर आप जितना भी अगर आप गलत भी बोल देते हो तो भी लोग आपको सुन के ऐसा नहीं बोलते कि उसने गलत बोला है, बिकॉज आप वैसा दिखा रहे हो. So somewhere even visually you have to show people how confident you are. No matter if you're saying something it's wrong or right. We are humans. Mistakes सबसे होते हैं. मैंने भी अभी मे भी 2-3 मिस्टेक बोलने में कुछ किया होगा. कोई कोई लोगों को नहीं जमेगा. Some people will not like if I said something. But I know how I have represented myself. And that can be seen. If somebody sees me, they'll see me. Okay, she's sitting straight. She is representing herself as the winner. दैट इज एक्सीलेंट ट्रेनिंग. All I thanks to must my compliment mentors. your mentors out there. All thanks to my mentors. उनकी आवाज़ कान में उनकी गूंजती ट्रेनिंग रहती है. इतनी स्ट्रिक्ट. अब आप कुछ फनी स्टोरीज सुना सकती हो अपने ऑडियंस को अबाउट योर बाइकिंग एक्सपीरियंस या फिर रैम्प पर. Biking का तो I told कि every time even if you I was waiting down आपकी बिल्डिंग के नीचे और 2-3 जन ऐसे आके मुझे देख रहे हैं और मेरे बाइक के आगे ना मैंने मेरा इंस्टा का आईडी लगाया है बिकॉज आई एम अ बाइक का कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो. तो वी कीप आवर आईडीज. सो देर आर मेनी टाइम्स पीपल विल कम, दे विल लुक एट माई बाइक आईडी एंड दे विल बी लाइक अच्छा, वहीं सर्च करते. हाँ वही मेरे सामने ही रहेंगे और वो लोग ऐसे मेरा सर्च करके मुझे फॉलो रिक्वेस्ट उधर ही भेजता. बट दैट इज गुड राइट, यू गेट मोर फॉलोअर्स. लाइक व्हाट. It is good, but they will like look ऐसे पीछे to see my bike. Then they'll look at my name and then they'll be like, okay, that is like one of my funny incidents everywhere I go. ओके. And sometimes though my hair is tucked inside my hoodie, so it doesn't get tangled. तो लोगों को लगता है लड़का है. अच्छा. फिर मैं सडनली ऐसे पोनी निकालती हूँ, गर्मी लगती है तो लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि अरे बाप रे लड़की है. I guess India is still not accepted girls on bikes. But then it gives me like a very funny story to tell to my community. या बिकॉज द फैक्ट कि आप एक ही लड़की हो इन योर ग्रुप. Yeah. सो इट्स. We are three, total we are three. But when we do group ridings, वो फिर एक normal सा एक environment में मैं अकेली रहती हूँ ना तो फिर वो थोड़ा अलग ही experience हो जाता है overall. या. One time तो someone followed me. Because I was a girl on the bike, my ponytail was out, and they followed me all the way to wherever I was trying to go. And every time, so sometimes it's a scary experience, sometimes it's good. You just don't know what you will get. तो हाउ डिड यू हैंडल वो स्टॉकर को. Abhi, our only thing is gear down and run away. Speed बढ़ा के throttle up and go. चले जाओ. गायब हो जाओ नजरों के सामने से. They can't follow you. एंड 2 clubs you're from. Yeah. And would you like to give our audience some tips for grooming? So, definitely I would love to give some advice. The importance of grooming is essential. How you are taking care of your hair, makeup, your body, very essential. Skin care आप ज़्यादा नहीं भी करोगे ना वो overly social media पे skin care दिखाता है. आप उतना नहीं भी करते हो it's fine. आपके जो स्किन को सूट हो रहा है मे बी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, डर्मैट के पास, यू गो टू अ डर्मैट एंड यू गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड अकॉर्डिंगली यूज प्रोडक्ट्स और जस्ट आई यूज दिस वन टेक्निक. what works for you now stick by it your entire life. I have this one sunscreen that works for me. Certain moisturizers also I will, if I keep using different products it does not work for me. और कभी कभी हो जाता है पैजेंट पे जा रहे हो तो आपको उनका मेकअप भी इस्तेमाल करना रहता है. आप खुद का तो मेकअप यूज़ कर रहे हो बट कभी कभी वो लोग आपको मेकअप करके देते हैं तो आपका मेकअप कैसे हो रहा है, आपको स्किन में एलर्जी रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है. मुझे तो होता है, आई हैव अ ह्यूज सेंसिटिव स्किन.
So for me, certain products will immediately give me a reaction. So for me, then I only keep using the products that I have bought for myself and it works for me. But you can't do that always. So the best thing would be go home, take off the makeup completely, give your skin air, most importantly. Give it like a good wash, give it like a good air to breathe. Apply your favorite moisturizer that works for you. And apply your sunscreen. Sunscreen is the best thing. Okay. There's a myth that you only apply sunscreen during the daytime when you're stepping out. I say you apply sunscreen every 3 hours, even if before going to sleep. My sister thinks I'm crazy because I'll take the sunscreen and I'll be like, रात को सोने के पहले, and she'll be like, you are going to sleep, you are not going outside. I'm like, yeah, I know, but I can maintain. If I take off the makeup right now, you will see I have small spots, but my face is not filled. It's very clean. So sunscreen best option. आप ज़्यादा कुछ करो भी नहीं ना तो भी sunscreen काम कर जाता और है. घर में रहो तब भी सनस्क्रीन लगानी Yes, I would suggest that only. Every 3 hours, keep applying your sunscreen. Even if you are in your home, apply your sunscreen. Before sleeping, apply. नहाने के बाद directly apply कर दो. It works best. चाहिए. अच्छा. एंड मॉइस्चराइजर. And moisturizer. Whatever works for you the best is your best grooming for your skin. For your hair color, I am a huge shauकीन of hair colors. Hair colors leads to damage. So जितना कम कलर कर सकते हो या उसके बाद आफ्टर केयर जो होता है वो सीरियसली ले लो. ओके. फॉर दैट आपका मॉम का सैलून तो है ही. तो आई एम श्योर. I have a salon, but trust me, I can't go to that salon every now and then. Sometimes I have to urban club or do something like that. Because she's so busy and so I don't want to put myself on her. I don't want to, stress her out because every time we go, na, the salon is always full. ऑलवेज फुल. तो हम लोग ने घर पे ही थोड़ा थोड़ा ग्रूमिंग सीख के रखा है. ओके. घर पे ही बैठ के करो. माय गॉड. एंड शिमोनल वी ऑल्सो सीन कि आपको पेट्स का बहुत शौक है. लाइक आपके काफ़ी पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पे वे यू अडॉप्टेड स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया है और बहुत कुछ ऐसे सोशल वर्क करती हो पेट्स के लिए. तो व्हाट इज़ दैट लव फॉर पेट्स? My pets is like the topic I would just love to talk about. I love every kind of animal. Like I just love stray dogs, stray cats. I have got so many dogs and cats home also. And my mom is like, she's afraid of dogs. Now she's slowly starting to get out of that, because we have 2 dogs at our home and 1 cat. So now she's not that much afraid. But before, when I was small, I would pick up a random stray and get it home. अच्छा. So my mom used to be scared. And we have adopted 2 dogs in our salon, but that's done by my mom. ओके. So we have a little shed that has been submitted to us by I Love Mumbai, Rahul Kannal sir. And he's donated that to our salon. दैट कैनल राइट. Yeah, that kennel, the green kennel that we have. And it also has the marking of I Love Mumbai. And those 2 dogs are adopted by our salon. So my mom takes care of them. ओके. दैट इज़ एक्सीलेंट. दैट इज़ ऑल्सो एक काइंड ऑफ. And we actually allow dogs to come at our salon. So if you are a customer and you have a dog and you can't leave it home, you can actually get it to our salon. And you can keep them here. ever tried ramp walking with your pet? No, because it's not allowed. But I would love to. I would like hold my 2 dogs in my hand and walk. Have you taken them on your bike? No, I don't risk them. I feel it's unsafe because they're animals. They might get scared. Unpredictable हो जाएगा. कभी पता नहीं चलता. So I don't risk that part. Certain people you see they roam with their cats, their dogs. Yeah. But it's गाड़ियों में लेके not. घूमते हैं. गाड़ी is fine. एक रूम है, क्लोज जगह है. बाइक पे कभी भी कुछ भी हो सकता है and you never know. अच्छा. So when you are bike, you are like full alert mode. Okay. That is excellent. Yeah. So now I want to know कि आपका vision क्या है for the future? For me, currently, my goal is to be representing internationally for either Miss Grand India or, if possible, Miss Universe has always been my dream. No matter how many pageants I do, at the end of the day, I want to see myself on Miss Universe stage most. I want to have that Miss Universe title, that crown. So that's my ultimate vision. That's like getting that crown back to my country, representing my country on that grand stage and showing, proving, being able to aspire little girls. बहुत जो
बहुत ऐसी लड़कियां होती है जो उनको लगता है वो उनमें फ्लॉज बहुत है और वो नहीं आ सकते स्टेज पे, और इतने बड़े स्टेज पे तो नहीं आ सकते, बहुत ऐसे कंट्रोवर्सीज होते हैं, बट आई वांट टू शो देम ऐसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हो, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट. So my main motive would be if I would be able to inspire those young girls around to be able to come on that stage and fulfill their dream and not stay in that closed box और फिर एक पॉइंट पे रिग्रेट आ जाए कि अरे करना नहीं चाहिए किया, था, हाँ. क्यों नहीं किया. सो दैट्स माई अल्टीमेट गोल. और अगर लाइक आफ्टर विनिंग द पेजेंट एंड एवरीथिंग, डू यू वांट टू परस्यू की एक्टिंग करना है आपको? No, acting has never been my passion. I have done a lot of acting classes and all, but my main, I would say, I love to walk on the stage. ओके, I just want to walk on the stage. Let it be any stage. My mom used to tell me I used to walk in random movie theaters also. So, stage देख के उनका वो जो stage रहता है ना, तो I feel I just want to walk on that stage. When I am on that stage with the heels on, with the costume or the dress on, or the outfit, I just know I'm not afraid of any cameras or anything. I just in my own zone. I'm walking. I'm doing my 100%. So yeah, maybe ramp walks, modeling would be my main goal afterwards. ओके, बट नॉट एक्टिंग. No, no, not acting. Nothing wrong in that, but I see myself doing more of the supermodel kind of thing. यू लव द कैटवॉक मोर. Yeah, I love it. That is excellent. And can you talk about wardrobe malfunction जो स्टेज पे होता है, समटाइम्स कुछ कोई गिर गया सडनली या कुछ ऐसा, जैसे कि बिकॉज कुछ भी हो सकता है, राइट? Wardrobe malfunction actually it's a good topic to talk on. Usually pageants में बहुत होता है, rarely भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा एक रहता है कि either you will face it or you will not face it. क्योंकि कभी कभी आपको जो outfits दिए रहते हैं ना certain rounds के मुताबिक बाहर से भी दिए जाता है, तो कभी आपको फिट नहीं आएगा, कभी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, कभी लूज हो जाएगा, या कभी जल्दी जल्दी में. हाँ कभी बहुत प्रॉब्लम्स, कभी कभी अटक जाएगा किधर तो फट जाएगा. या आप फॉर एग्जांपल वी हैड दिस competitor for Miss India, Milestone Miss India round, and she had a beautiful outfit that she was wearing, costume in traditional costume के लिए, and suddenly one of her piece fell down. The main important piece which she had back, it fell down on the stage because it was not tied correctly और उसका weight बहुत ज़्यादा था. विंग्स थे क्या? It was something related to her culture. ओके. She was from Arunachal Pradesh, so something it was related to her, but it was so heavy, it was really heavy, and it's commendable for her to roam with, walk on that stage with something so heavy. वो मेरे से भी उठाया नहीं गया था, but she was walking with her back पे tied, so वो गिर गया स्टेज पे गिर गया. वो बहुत भारी था, वो एक छोटे से रस्सी से इट कैन नॉट बी हैंडल्ड, इट फेल ऑफ, बट शी डिड वन ब्यूटिफुल थिंग. इट फेल ऑफ, शी लेट इट गो. अच्छा. शी लेट इट गो, शी डिड नॉट बॉदर. वो उन्होंने उनका वॉक फिनिश किया, उन्होंने रिटर्न किया, एंड देन रिटर्न करते वक्त भी उन्होंने ग्रेसफुल से पिकअप किया. ऐसा नहीं कैसे पिकअप करके वो नर्वस में चले गए, स्टाइल बना दिया. हाँ एक ग्रेस से पिकअप किया. She couldn't win because of course all of these matter, like what you're showing, how you're showing, पर एक ग्रेस से पिकअप किया और ऐसे लेके गए, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी कुछ गलत हो गया उनके साथ. तो all of this matters a lot. Even if something कुछ लूज हो जाता है, कुछ गिर जाता है, आपको उसमें भी आपका परफॉर्मेंस नहीं छोड़ना है until you are in your backstage. नहीं तो कुछ गिरता है तो एक्सप्रेशन एकदम हो हाँ जाता है, कभी कभी हो जाता है. You might suddenly become nervous. Okay, ये गिर गया, अभी मैं क्या करूँ? This was the main item of my theme, and then you don't have anything to show, but you still have your performance left. अच्छा. Because they're not judging you on what you're wearing. They're judging you on how you're walking, how you're smiling, how you're showing yourself. So your performance is not over until you say it's over. दैट इज़ एक्सेलेंट. क्योंकि लाइक वो तो लेडी जीती नहीं है, लेकिन आज भी आपको वो याद है. सबको याद है, हम सब बात करते हैं, हमारा पूरा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ वी शुड लर्न फ्रॉम हर, दैट द वे शी पिक्ड अप, द वे शी टुक इट बैक विथ हर ग्रेसफुली. दैट ग्रेस वाज देयर. सो अभी भी कभी आपको कोई भी फैशन इंडस्ट्री में भी जब रैंप अप करते हो, मैंने तो पर्सनली किया नहीं है, बट वी सी वीडियोज़ ऑन इन यूट्यूब एंड ऑल कि बहुत मॉडल्स का कुछ गिर जाता है और वो लोग पैनिक हो जाता है या हील टूट जाता है.
This is one actual story from Miss Grand International, which happened this 2024. One of the competitors, I saw it on TV. उनका हील टूट गया. 6 इंच का हील है. एक हील टूट गया while walking. So she did not touch her heel. She just took it off, and she was on her tippy toes throughout the entire walk. तो ऐसा लगा नहीं कि हील टूट गया. पता ही नहीं चला. हाँ, पता ही नहीं चला किसी को भी जब तक वो पैजेंट के बाद ख़त्म हो जाता है. फिर वो वैसे वीडियोज़ आते हैं वेर पीपल आर जूमिंग ऑन फ्लॉर्स एंड ऑल, तो उसमें दिख गया. पर थ्रू आउट द पैजेंट दिखा ही नहीं. फाइनल राउंड में वो भी उनका हील टूट गया. तो हील ब्रोक एंड शी डिड नॉट शो इट बिकॉज शी वॉज ऑन हर वन लेग का टिपी टो एंड शी वॉकड ऑल द वे That gracefully. that gracefully. So that all matters, and it's all because of training. You have to be trained that way. Training, Your physical training also and your mind Mind set. training, yeah. So mentally also you have to be that strong. कि आप कभी कोई फेस करो प्रॉब्लम तो आपको उसका सोल्यूशन भी निकालना आना चाहिए. क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो 6 इंच का हील है तो वो टर्न भी हो सकता है ना, पैर टर्न भी गिर हो सकता है, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है. You might even fall off the stage. So how you pick yourself up and walk back all depends upon you. yeah, and it's scary इतनी ऑडियंस के सामने, you know. इट इज़ ऑलवेज अ नर्व रेकिंग. दिखता नहीं है बट मेजॉरिटी हम लोग जब भी स्टेज पे रहते हैं ना, और जब हमारा नाम सुनने में आता है ना वॉक के लिए, Walk, हाँ. तभी वो एक नर्व रेकिंग सिचुएशन आ जाता है. बट लेकिन आप कभी स्टेज पे देखोगे नहीं उनके. एक स्टेज पे एक अलग सा स्माइल, एक बॉडी काम हो जाता है. बट वो बैक स्टेज में ऐसा ऐसे ऐसे चलता रहता है, नर्वसनेस चलता रहता है, पर वो कभी स्टेज पे दिखता नहीं ये है. बहुत अच्छे से दर्शाया गया है ना फैशन मूवी में. शी सेइंग वॉक 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 और वो फ्रीज हो जाती है. Yeah. और- So that one movie was actually portrayed in an amazing way to show how the models face so many problems, and it's not easy. It's not You easy. think you are wearing 6 inch ka heels and you're walking. It's not easy. The requirements changes. You are supposed to. Thousands of people are looking at you. Cameras are pointed at you. एक मिस्टेक और सब आपको बैकलैश, इतना सब आपको सोच के जाना पड़ता है. आप स्टेज पे गलती से कुछ बोल दिया, कैसे दिख गए, आपका मेकअप कैसा है, आपका हेयर कैसा है, एवरीथिंग काउंट्स. सो इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस व्हेन यू आर बैक स्टेज, एंड दैट यू डोंट इवन हैव टू शो इट ऑन द स्टेज. सो द माइंड ट्रेनिंग, योर मेंटल ट्रेनिंग हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग. ओके. एक वो हाउ मेंटली स्ट्रांग. हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग यू आर, बिकॉज आप पूरे कंट्री को आपके साथ कैरी करके लेके जा रहे हो. आप एक के एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके जा रहे, आप इंडिया का नाम है आपके ऊपर, लेकिन 60 बिलियन लोगों का आप एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो. सो यू सपोज टू प्रूव देम ऑल्सो कि यू आर द राइट कैंडिडेट. सो मच ऑफ स्ट्रेस, एंड उसमें आप much गुड pressure. परफॉर्मेंस करके देखो. इट्स नॉट सो ईजी. नॉट इजी. ओनली द स्ट्रॉन्ग, दिस इंडस्ट्री इज ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव्स, ओके. मेंटली एंड फिजिकली. mentally and physically. So if you are in this industry, it's a little downside when I say this. People feel ऐसा नहीं होता, but trust me, it is that way. If you are the strongest, if you can stand out of 100 people, देन यू then you are the one. सो ट्रूली डिजर्विंग वाले को ही क्राउन मिलता है. Yes. And ऐसा होता है, हम लोग को बहुत बार लगता है कि बहुत biased है, पर आपको पता नहीं है कि पीछे कितना चल रहा है. जजेस के भी माइंड में, आपके भी माइंड में, कंटेस्टेंट के भी माइंड में. सो नथिंग इज़ बायस्ड, एवरीथिंग इज़ फेयर एंड स्क्वायर. दे सी यू. आपके पूरे पैजेंट ट्रेनिंग में 1 महीने का आपको उनके साथ रहना पड़ता है. 1 महीने में आप कैसे चल रहे हो, बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, जेलअप हो रहे हो, सब देखते हैं. अच्छा, वो भी काउंट होता है कि आपका बैक स्टेज परफॉर्मेंस. बैक स्टेज परफॉर्मेंस, आप ट्रेनिंग टाइम टू टाइम, अगर आपको सुबह 8 बजे बुलाया है और आप 8:15 को या 8:05 को पहुंचते हो, तो दैट शोज यू आर स्टिल नॉट पंक्चुअल. आपका पंक्चुअलिटी सब देखते हैं वो लोग. So, आपको थ्रू आउट वो 1 मंथ इज़ योर मेन एक्चुअल स्कोरिंग. वो आप जो फाइनल पे करते हो ना, इट्स जस्ट योर ट्रेनिंग that you do, that comes out, that everybody knows. But वो 1 month behind the stage, आप क्या, आपका कैसे आपको represent कर रहे हो आप सेल्फ को, वो important है. ओके. तो उस सब पे जज होता है. वो सब पे जज होता है. हमको लगता है कि सिर्फ वो पैजेंट के दौरान आप जज हो रहे हो. No. एंड देन It's a myth, but they judge you. आपके ऐसे जजेस की आपकी नज़र 1 महीने तक रहती है.
अच्छा, आप सोशल मीडिया पे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आप रिस्पेक्टफुल हो नहीं हो, आप पंक्चुअल हो. आप कितना जंक फूड खा रहे हो थ्रू आउट द पैजेंट, आप आपका हेल्थ का ध्यान रख रहे हो कि नहीं, आर यू इन टू एल्कोहल और एनीथिंग, दिस यू completely how they take you do a lot of parties also with them, so in that party how you are behaving, this you everything and then they make you the winner. ओके. सो ये भी मिथ होगा ना कि दीज मॉडल्स आर इनटू लाइक लॉट ऑफ Somewhere I would not इंटॉक्सिकेशन. I would not debate on that topic. It's a very sensitive topic. Now, personally, I'm away from all this. If I were to do anything like this, I would never put myself into it. Yeah. A lot of people talk about this industry also in that way, that you have to do compromises and all. This is very sensitive, but I would not compromise my self-respect for anything. Is what I believe. अगर मेरा career ऐसे नहीं बन रहा है, because I have to maybe satisfy someone or something, then I would not do it. I would prove in another way. Yeah, you I would prove let that opportunity go because it's not important than who I am. For me, that's more important. And I don't want to debate on that topic because we don't know what's going inside that person's mind, or why did that person choose that road, or what actually happened for that person to be inside all this. I don't really like to talk about because उनका भी एक बैक स्टोरी अलग है, तो मैं उनको ऐसे जज करूँगी अच्छा नहीं लगता. Yeah, that is very mature of you. And any final takeaway, Shimonal, for our audience out there? And we also wish you all the best. Thank you so much. My only takeaway would be own your true personality, own your true self. Never compromise for anything. आपको कोई प्रेशर कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है नहीं आपको ऐसा काम तभी मिलेगा, वैसा काम तभी, छोड़ दो. It's okay. There are a lot of other ways. Believe in who you are, believe in the culture that you come from, believe in the parents' hard work जो आप में डाला है, वो जो आपको बोलते हैं ना, they are sending you with a mindset, with a belief, वो खाली कायम रखो. कुछ दूसरा सोचो मत कि आप ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे तो आपका करियर आगे जाएगा नहीं. Everything can be proved wrong if you are willing, if you are willed enough. Like, don't be so desperate for work that you compromise. Don't run behind. We say don't run behind money. Don't run behind work. Just Prove yourself, prove and yourself work will and work will come to you. Correct. Definitely. Thank you so much, Shimonal, for coming on our show. I learned so much. मतलब इतना ऑडियंस को भी सीखने मिला होगा कि रैम्प पे कैसे चलते हैं, बाइकिंग कैसे करते हैं, ग्रूमिंग हमने कवर किया, और काफ़ी कुछ सीखने के लिए. वार्डरोब मैल फंक्शन के बारे में बात हुई. तो आई एम श्योर our podcast will give lot of value. I'm hoping as well because this is my very first podcast and I was so nervous when I was coming. I was like, okay, what if I make a mistake while talking? Maybe I'll say something offensive. People will not like it. But the entire crew is so loving, so welcoming. Even you are so it's like all the nervousness just went away. So I think we should thank Rap Pulse for Yeah, absolutely. Thank you so much. You're an amazing team. this is her first podcast ever. Thank you, Rap Pulse. Thank you, Shimona. Thank you. Thank you so much for And wish inviting. you It all was the lovely. best. Thank you.